अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और बिफोर वी गो अहेड, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अब तो बार बार कह रहा हूँ, ये बटन है इधर नीचे, प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, ताकि वी कैन ग्रो और ब्रिंग मोर interactive sessions with you, or bring more guiding lights or more suggestions and how to deal with life and what to do in your educational career or in job career, wherever you want to find and help from us. So, today we are going to talk about the most important people of our society, the most important gender, women. So, I believe that if you teach a woman, you teach a generation. If you destroy a woman, you destroy a generation. So, we have called a woman. She's an entrepreneur, and she is just a normal girl who is trying to find her goals and try to balance with the goals and the wishes of her parents, who is dealing with society bravely and who is not letting her dreams go away. Has also faced many pressure, and she is a very dear friend of mine. And I would like you all to watch till the end and see what she has gone through and what she is doing. She is a woman entrepreneur, a successful one, trying to do things, fighting society, and learning new things. How how was her journey? At what stage she is, and how things went for her. We will discuss all of these things. Please welcome Nayanzara. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? I'm good. आप कैसे हैं श्रेय? बेहतरीन। So how was your day going there? क्वारंटीन के डेज ऐसे चल रहे हैं, लिटिल लेजी, इसी तरह से चल रहा है सब कुछ अभी। एवरीथिंग इज अ Uh, लिटिल हॉल्ट। हाउ from अबाउट यू? quarantine, I just came to up that Corona is a very feminist disease. More men are getting affected by this, and women are on the safer side. So that's a quite feminist approach. I believe some of the feminists would come up and say that we want to have this. Other than that, jokes apart, it's good. Okay, so coming to the life, how was your educational career till now? टिल नाउ अच्छा इस तरह से था कि आई वाज ऑलवेज डिसाइडेड कि मैंने बिजनेस फील्ड ही ऑप्ट करनी है सिंस आई थिंक आई वाज इन 8th ग्रेड व्हेन आई रियलाइज्ड कि आई एम नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट और वो रियलाइजेशन मुझे काफी स्ट्रांग थी एंड आई ऑप्टेड फॉर बिजनेस सब्जेक्ट्स एंड टिल डेट आई हैव ओनली स्टडीड देम मतलब मैंने पहले अपना बैचलर्स बीबीए में करा और वो मैंने मुल्तान से किया था and then I think that was the time we got to know each other too through a society that we both were in. And then I did my master's MBA from Delhi University, Islamabad. तो मेरा थ्रू आउट जो जर्नी है आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर फ्रॉम एमबीए तो मेरा जो ओवरऑल जर्नी है वो सारा बिजनेस और मार्केटिंग और इस सब में ही रहा है एंड Okay. आई एम ग्लैड आई हैव नो रिग्रेट्स Similarly, we share the both field, so same field. So in marketing, we discuss how to promote and establish some type of thing. But what I lack, if you can agree to me or not, that's dependent upon you. But in university or some time, you find teacher who thinks creativity is only limited to their imagination. If you think out of the box, if they cannot understand it or cannot make logic out of it, that is रबिश और फजूल टाइप हो जैसे कहते हैं ना अपना फजूल का दिमाग खर्च कर रहे हो ये तो मार्केट में चल ही नहीं सकता सो हम्म आई वुड लाइक टू नो हाउ मच डू यू एग्री टू दिस यार अशर इसके ऊपर ना अगर मैं शुरू हो जाऊँ ना तो आई डोंट थिंक आई थिंक हमें ना पूरा घंटा लग जाएगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बेसिक इशू है कि टीचर्स जब आपको कोई चीज पढ़ा रहे होते हैं खासतौर पे मार्केटिंग क्रिएटिव सब्जेक्ट जब भी पढ़ा रहे होते हैं तो दे कम अप विद अ सर्टेन माइंडसेट और आप अगर थोड़ा सा भी उससे फ्लक्चुएट करते हो कंसिडरिंग द योर ओन आइडियोलॉजीज कंसिडरिंग योर ओन एनवायरनमेंट तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते एंड जो उससे भी बड़ी चीज जो लैग करती है हमारी ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम में वो ये होती है कि आपके जो टीचर्स हैं उनका मार्केट एक्सपोजर खुद इतना नहीं होता है सो व्हेन दे कम अप टू यू एंड आस्क यू टू ब्रिंग न्यू आइडियाज वो उनका अपना माइंड ही इतना ग्रो नहीं किया हुआ होता आई एम सॉरी टू से अगर कुछ ज्यादा हार्श वर्ड्स हो जाते हैं बट दैट्स द रियलिटी तो उसके अंदर ये हो जाता है कि स्टूडेंट्स फिर उस तरह से नहीं ग्रो कर पा रहे होते हैं एंड मतलब कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल पॉइंट आई टोटली अग्री विद यू ऑन दिस कि मार्केटिंग में उस तरह से क्रिएटिविटी को प्रमोट नहीं किया जा रहा है और क्यों नहीं किया जा रहा है आई जस्ट गिवन यू द रीजंस आउट देयर अच्छा कमिंग बैक टू योर एजुकेशनल पार्ट what did you do before bachelor's
I did my A levels. Before that, I did my O levels, and then I Oh, so you got are it. the padaku bacha of OA levels. Nice. Not to. So, Hmm. acha, so how was your life in A level and O level? You are very concentrated and topic related courses, not like our system, which is subject related. You get topic and you can study or get examples from different books. So, coming to the Hmm. university, do you think you had an upper hand or it was equal? Compared to people who were coming from a Pakistani system, or I would say the जो कि एक federal system है, उसकी comparison में I would say when I was in my bachelor's, there was a huge difference. हर एक चीज में उनके प्रेजेंटेशन स्टाइल्स, आपके प्रेजेंटेशन स्टाइल्स, उनकी राइटिंग स्किल्स, आपके राइटिंग स्किल्स, एंड आई वुड टेल यू ऑनेस्टली अशर, आई वाजंट इम्प्रेस्ड बाय दैट. दिस वाज वेरी सैडनिंग फॉर मी कि हमारे ओवरऑल सिस्टम इतना फ्लॉड है कि वो जो बच्चा पढ़ रहा है वो कुछ बेसिकली सीख नहीं रहा है. तो अ वेरी स्मॉल चंक, मतलब आप और मैं, आई वुड से कि वी आर प्रिविलेज्ड इनफ अल्हम्दुलिल्लाह कि वी गॉट एजुकेशन ऑफ दिस सोर्ट. वरना मैक्सिमम आपका बच्चा जो है वो जैसी एजुकेशन लेके आ रहा है, आई एम रियली सॉरी, लेकिन बहुत बड़ा गैप है और बहुत ज्यादा डिफरेंस आप देखोगे कंपेयर व्हेन यू कंपेयर मैट्रिक स्टूडेंट विद एन ओ लेवल स्टूडेंट, इस तरह से. और वो So, थ्रू आउट coming चलता रहता है. perfect, that we know, and we are facing this quite a lot of time. And in last of our interviews, we took people, and they had the some of the same view. Problem sirf ye hai, I would just add a point. When you are choosing for your inter, and if you choose other than pre-medical or pre-engineering, you are taken as an allied bachcha. इसको admission नहीं मिला होगा, that's why he chose the other field. So those Yeah. fields only remain for the kids who cannot get admission in pre-medical or pre-engineering. तो वहां पर आपकी choice की बात नहीं रहती. तो that's why the credibility of those fields comes very less. और फिर पाकिस्तान में भी later on we will discuss on this. और गोल रोटी भी we will discuss. But coming to the first part. Acha, Hmm. so as you want to be an entrepreneur, entrepreneur is a Hmm. person, I believe, who brings new idea to the old problems. So, what is the first problem you saw in our culture, university culture, that you would like to address? यार यूनिवर्सिटी में व्हेन आई थिंक ऑफ, मतलब एक तो ये है कि आई हैव अ लिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रॉब्लम्स दैट आई कैन पुट फॉरवर्ड, लेकिन बिकॉज यू आस्क्ड कि एक स्पेसिफिकली अगर हम देखना चाहें तो आई वुड से कि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, वो जो एक गैप में देखती हूँ ना कि स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू डिसीव देयर टीचर्स एंड देन टीचर्स आर ट्राइंग टू डिसीव देयर स्टूडेंट्स इक्वली. ऐसा नहीं है कि टीचर्स बड़ा अच्छा परफॉर्म करने के लिए आए हुए होते हैं एंड सिर्फ स्टूडेंट्स की तरफ से वो एक रेजिस्टेंस होती है. वो दोनों तरफ तरफा हो रही होती है, विच इज वेरी सैडनिंग. अगेन बड़ा डॉन्टिंग लगता है आपको जब ये हो रहा होता है कि स्टूडेंट्स टीचर को वो चीज लाकर दे रहे हैं जो कि उन्होंने खुद किया भी नहीं है, कहीं से उठाया, प्लेजराइज किया, दे दिया. टीचर्स का मैक्सिमम क्या कोशिश होगी कि इसको किसी तरह से हम लोग कम मार्क्स दे दें, या फिर अगर आपकी टीचर से अच्छी बनी हुई है, सलाम दो, अच्छी है, पाकिस्तानी कल्चर है, तो आप उसमें वैसे ही निकल जाते हो, वो क्लियर आउट हो जाएंगे आपके प्रेजेंटेशन. तो आई थिंक ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप सीख नहीं पाते हो. मतलब इफ आई कोट एन एग्जांपल हियर, जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे, हम लोगों को रिसर्च के ऊपर किसी ने कुछ पढ़ाया नहीं था इतना क्लियरली. उसकी सबसे बड़ी रीजन ये थी कि टीचर्स को भी वो उतना क्लियर था नहीं. तो ये ऐसा प्रॉब्लम है कि अगर मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में जाके एक एंटरप्रेन्योर अप्रोच लेके जाती हूँ, सो दिस इज समथिंग दैट नीड्स एड्रेसिंग. अब वो कैसे होगा उसके लिए भी मैंने सोचा हुआ है. पहली चीज उसके लिए ये है कि टीचर्स का एक सेट क्राइटेरिया होना चाहिए. मतलब हमारे पास ऐसे टीचर्स आते थे अशर जो बताते थे कि हम पिछले साल ग्रेजुएट हुए, इस साल आपको पढ़ा रहे हैं. तो दैट मेक्स यू थिंक कि इसने इसने लर्न कितना किया होगा, इसके पास इंडस्ट्री नॉलेज कितना होगा, ये तो अभी उठ के वापस पढ़ाने आ गया. दिस शुड बी द क्राइटेरिया. टीचर्स के एक सेट क्राइटेरिया, उन्होंने इतना इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लिया हुआ हो, जहाँ यहाँ से वो ये फॉर एग्जाम्पल उन्होंने रिसर्च पेपर्स पढ़े हुए हो या करे हुए हो, फिर आके वो आपको पढ़ा रहे हो. तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है. The problem is, I would come back to that part. Ab you say if you have a good relation with your teacher or instructor, you get out of it. Now that was my main question I'm coming to. So how many times did you play the woman card? अच्छा, दिस इज पहले तो मुझे ना एक्सप्लेनेशन दे दो कि व्हाट इज अ वुमेन कार्ड एंड हाउ डू होती है वी ना प्ले इट.
हाँ वो क्लास में होती है ना, टिपिकल टाइप ऑफ थिंग एंड sarcastic how you do in the Facebook. Sir, वो मैं उठी नहीं, and this type of a thing. Personalize, you try to charm your teacher and get to your grades. How many times did you do that? I don't think women actually do that. I think this is just a perceived mindset कि ऐसे लड़कियां करती होंगी. Because being a woman and being in a company of women, I have never observed women going to the teachers and playing their charm to get scores or whatever. But ये सुना बहुत है मैंने कि अगर इस लड़की, बिकॉज आपकी यूनिवर्सिटी में भी शायद होता होगा, मेरी यूनिवर्सिटी में तो बहुत होता था कि लड़कियां हमेशा टॉप करती होती थी, तो वो एक टिपिकल उनके साथ फिनोमेना अटैच था कि इनका मार्क्स इसलिए आए हैं बिकॉज ये टीचर्स के साथ ना बहुत ज्यादा चमी होती होंगी, या फिर men are considered a little they lean towards women, तो उस वजह से, तो yeah, I think but I don't think personally कि ऐसा हो भी रहा होता है. Okay, nice. So in a university, when there is a thing to get into art and in societies and do social work. So when you get into a society, obviously at that time of a student age, you are a very aggressive and you want to perform and do some type of thing. You break your limits and go ahead. What do you think? How does society wants to keep you in a shell, and especially a woman, and don't want you to grow or break your limits and those type of things? Here, society does limits you at so many levels. आपके आपके दिन के जो hours होते हैं वो बड़े limited होते हैं as a woman. आप ऐसे internships या ऐसी society work नहीं उठा सकते हो जिसमें you have to stay out late, जिसमें you have to like communicate maybe with the other gender a lot. लेकिन then again, I think it's more important कि आप खुद क्या achieve करना चाह रहे हो, आपके goals हैं क्या, because if I give you my own example, when I was selected for student council की एक internship थी कह लो, तो उसके लिए मेरा interview था, and the teacher asked me, she was also a female, and she asked me, Zara, how are you going to you know uh, work late hours and all of that, क्योंकि काम बहुत ज्यादा होगा, तो I need you to work like a man. And I tell you the truth, I was so disturbed by that statement कि ये क्या बात हुई ना, तो मैंने ऊपर से बोला कि मैम आई वुड रादर वर्क लाइक अ वुमन. तो उससे मुझे, मैं क्यों बता रही हूँ कि आपके अंदर जो वो अपना होता है ना कि मैंने करना है और मैं करूंगा, तो फिर आप उसके वे आउट्स भी निकाल लेते हो, इंसान बहुत फ्लेक्सिबल है, तो बंदा फिर अपने जरिए निकालता है. एंड you might disagree with me on this, but I think women have to work harder to achieve their goals in a खास तौर पे एक अच्छा करियर बनाने के लिए उनको बहुत ज्यादा चीजों को देख के गुजरना पड़ रहा होता है. As I come into your forte and as an entrepreneur, I find very less universities and credible courses in Pakistan who are teaching pure entrepreneurship and some other fields, because here you did MBA and in our field, marketing or finance is a top priority. Everywhere you go, you find MBA or marketing or finance. If you come up with other fields, they are not represented or taken as good as other are. So, how difficult is for you to become an entrepreneur and do your MBA, which is not related to entrepreneurship? You're very right about that कि आपके एजुकेशन सिस्टम में वो चीजें ऑफर ही नहीं हो रही हैं जो आप शायद पढ़ना चाह रहे हो. But then again, I think entrepreneurship is again an approach. ये दिस एक तो मतलब इसके दो पार्ट्स होते हैं. एक कुछ आपके अंदर नेचुरली होता है. यू हैव एन एंटरप्रेन्योर इन यू. आपके अंदर वो एबिलिटी होती है कि व्हेन यू सी थिंग्स यू थिंक ऑफ बिजनेस आइडियाज रिलेटेड टू दोस थिंग्स, बट उसको ग्रूमिंग की जरूरत होती है. उसके लिए बहुत ज्यादा लैक है, बहुत ज्यादा लैक है. एंड आई वुड से कि काफी ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स अभी ऑनलाइन पढ़ के अपनी उन चीजों को ग्रूम कर रहे हैं, या काफी सारे लोग कोई जॉब मार्केट में जाके बैठ जाते हैं और मेन गोल उनका ये होता है, जो कि मेरा भी एक अप्रोच है कि आप कुछ 3-4 साल जॉब कर लो एक अच्छी कंपनी में, एक्सपीरियंस गेन करो, उनकी मार्केट को स्टडी करो, एंड देन यू कैन लाइक जंप ऑन योर ओन बिजनेस. तो आई थिंक दैट इज द अप्रोच जो कि अभी कमिंग जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं उनको भी अडॉप्ट करनी चाहिए. Okay, coming to the professional side. Now, what I see from my professional experience and this many years, half a decade in this professional industry and job market,
we see that women are specially used for the face of the companies or in the customer representative field just to attract the customers and not given the pure chances of a hard work and thing. Do you think this notion is correct? Have you faced it or only I faced it? This notion is correct. A, I haven't faced it. B, but I have seen it being done to women. And मतलब आप किसी भी कंपनी में एंटर होगे, you'll see जो जो रिसेप्शनिस्ट होती है, उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो शी इज सपोज टू बी अ फीमेल. तो आई थिंक this goes back to Ashir our basics, कि हम लोगों ने जो बेसिक ट्रेनिंग्स की women objectification हमेशा से देखी, तो वो इतना instilled है हम सबके अंदर कि we even women we don't feel it as something really awkward. मतलब अगर हम कोई मतलब अगर हम कोई एयर होस्ट देख लेंगे या फिर कोई रिसेप्शनिस्ट मेल देख लेंगे, वो हमारे लिए ऑकवर्ड होगा. बट इफ वुमेन आर इन दोस पोजीशंस हमारे लिए नहीं होगा. तो आई थिंक दिस, अगर इसको ठीक करना है ना, दिस ऑल गोज बैक टू द बेसिक्स. आपकी वो बचपन की ग्रूमिंग एंड ऑल ऑफ दैट, एंड स्टेप बाय स्टेप आई थिंक वी कैन चेंज दैट. हाँ, सेकेंडली कमिंग टू दैट मोशन और यहाँ पे जो एक बहुत ज्यादा है, द बॉस बिकम्स योर गॉड. ठीक है, उसका ये होता है कि बस मैं क्योंकि तनख्वाह दे रहा हूँ तो वॉट एवर आई से इट इज. हाउ इम्पोर्टेंट फॉर अ गर्ल इट इज टू से नो एट टाइम्स टू हर एम्प्लॉयर और हर मैनेजर. It's very important. मतलब मैं I was having this discussion earlier with somebody and that person told me कि तुम ये कहना बड़ा आसान है कि लड़कियां मना कर दें, but it's very hard क्योंकि मार्केट बहुत सैचुरेटेड है, लोग जॉब के लिए मर रहे हैं, तो you have to just agree with the bosses और वो जो भी बोल रहे हैं, you just have to do it. तो मैंने बोला कि I don't agree with this क्योंकि the important part is कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं. एंड अशर अभी जिस स्टेज में तुम और मैं है, वी रियलाइज कि अभी हम बड़े अच्छे टाइम में है, ये हमारी लर्निंग की एज है, कंपनीज भी उसी तरह से ट्वीट कर रही हैं. बट इस टाइम पे अगर हम नो करना नहीं सीखेंगे, दे विल अ टाइम विल कम जब हम कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उस तरह से सेट हो जाएगा एंड देन वील बी सो डिस्टर्ब. तो ये दिस इज सुपर इम्पोर्टेंट और आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ कि ये कितना इम्पोर्टेंट है. और कहना कैसे है वो आपको अपनी आप अपना एक सेट कर देते हैं पैटर्न कि मैं ये चीज करूंगा, ये नहीं करूंगा. इवेंचुअली योर बॉसेस रियलाइज कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस है. उसके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आप काम अपना दे रहे हो और उसमें आप कोई दो नंबरियां नहीं कर रहे, ऑनेस्ट हो अपने काम के साथ, एंड देन यू कैन एक्चुअली स्टार्ट सेइंग नो फॉर द थिंग्स दैट यू डोंट वांट टू डू. Exactly. And coming down to those part, and I would like to request the bosses or employers that you don't need to force a person or a woman especially to dress in some ways, because in job you are not paying her to dress. She is not a model or Exactly. something. You are paying them for their services. I find it very hard and very bad that first they employ, then they say no, you need to come up with a good dressing sense and do this type of a thing. You Yeah. need to represent yourself. I don't mind you saying that, but say that on the interview. If the person cannot do, he can leave your company and go to another one rather than after hiring that. और फिर पता है आपको कि if you leave the job, how bad impression people takes कि Exactly. you left the job in 3 months. But it's Yeah. not the time that with the age we are living in, the youth we are facing that wants to learn rather than they wants to be a robot. I know 10 years back people wants to be a robot, but now people want to learn. So they shift from Exactly. 3 years because they get bored of that company and they think we are not learning anything and they are not giving us back. So they want to go. Coming to the most important thing. In this time of our time, in this era where pandemic is going on, entrepreneurship is the most important thing. And I really hate it when people link it to creating your own business. Because I Hmm. feel that in this industry in Pakistan, every company needs to have an entrepreneur who can tell them new solutions of their old problems. But why it Exactly. is being linked to your business? Because वो जो notion है मेरे हिसाब से इसके पीछे कि भाई अपना काम करोगे तो सुकून है, नौकरी तो गुलामी होती है. हाँ. हाँ. क्या it is linked to that, or do you as an entrepreneur do you agree to this? अच्छा, पता है जो अभी तुमने बात की ना, उसका बेसिक प्रॉब्लम आई थिंक ये है कि एक कंपनी की जो ये सेट हुआ हुआ है ना कि अपना बिजनेस करोगे तो वो एंटरप्रेन्योर कहलाएगा, और अगर आप एक कंपनी को न्यू आइडिया सजेस्ट कर रहे हो वो फिर भी नौकरी है, और नौकरी में सुकून नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप में सुकून है. आई थिंक वो इसलिए सेट हुआ हुआ है क्योंकि आपका व्हेन यू वर्किंग फॉर समबडी, तो उसका एक टिपिकल अटैचमेंट हुई हुई होती है कि
the company can decide when you stay and when you leave. और स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ कोविड हम लोगों ने खुद देखा है कि कंपनीज ने बेतहाशा ले ऑफ्स किए हैं. सो व्हेन यू थिंक ऑफ दीज थिंग्स, व्हेन यू सी दीज थिंग्स, तो आपको एक रियलाइजेशन आती है कि इफ आई हैव माय ओन वर्क, अगर मेरी एक अपनी स्टैंडिंग है, अगर मेरी एक अपना एक नेटवर्क बना हुआ है जिसके साथ आई कैन स्टार्ट माय ओन बिजनेस, आई कैन वर्क, तो आपको थोड़ी रिलैक्सेशन फील होती है. तो वो कॉन्सेप्ट तो रहेगा. एंड ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज टू अनदर फर्म as their employee is then again a different thing, but ऐसा भी हम कर सकते हैं. For example, तुम और मैं decide करते हैं कि we're going to be a new firm and we're going to suggest, we're going to pick up companies और इनके जो flaws हैं उनको set करने के लिए हम solutions देंगे. So then what happens is 5 years from now आपकी और मेरी एक कंपनी बन जाती है जो दूसरी कंपनीज को हेल्प आउट कर रही है, बट वी आर ऑन आवर ओन, हमें कोई निकाल नहीं सकता है. तो आई थिंक ये जो जॉब सिक्योरिटी वाला पाकिस्तान में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसको दिमाग में रखते हुए लोग दो चीजों को प्रेफर कर रहे होते हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब सोचें या फिर सेकेंडली हम अपना कुछ कर लें, अपना बिजनेस कर लें. बिकॉज प्राइवेट में यू नो दैट आप और मैं दोनों सिस्टम में बैठे हुए हैं, प्राइवेट में क्या हो रहा है. That's why on a session I gave a suggestion on economic development forum that rather than asking person how many times you have left in my earlier videos, SSCP needs to decide that every company would publish their turnover rate, employee turnover rate, how many employee they hired and how many left. And they need to be set like a modern and ethical countries. It need to be set at a percent, 10%, 15%, that you cannot have a turnover rate more than that. Then company, I feel, would be obliged to understand employees rather than understanding them as slaves. यहाँ हमारा वो एक कॉन्सेप्ट बन गया दीदी, सॉरी टू से, जो होम हेल्पर्स होते हैं, ठीक है, हमने उनको नौकर समझा होता है कि भाई अच्छा वो आया है तो झाड़ू भी वो कर देगा, तपड़ी भी वो कर देगा, ऐसे भी वो कर देगा. तो दैट इज द सेम थिंग वी आर टेकिंग टू द जॉब कि आईटी भी ये संभाल ले. क्योंकि अभी आप जॉब एड्स देखो, आईटी भी बंदा चाहिए उनको, एसईओ भी चाहिए, मार्केटिंग मैनेजर भी चाहिए. और मजेदार बात यह है जो मुझे इतनी हैरानी होती है कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग मिक्स की हुई है. और लोगों को पता ही नहीं एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और पीआर ये तीनों दो लाए मार्केटिंग के अंदर करते हैं, लेकिन ये है टोटली डिफरेंट. PR का मतलब, but still we are in a developing country, so I feel like it would happen, or with the time we will get to there where we want to. अच्छा, coming to your firm. अच्छा, अगर फर्म में लोग, आप अपनी फर्म शुरू करते हो, if people do not dress formally and like many in the seasons और जो movies आजकल आ रही है, youth को ऐसे दिखाया जा रहा है co-working spaces में, they don't dress, they dress what they want, वो typical formal dressing है. तो what do you believe of that company? क्या वो कंपनी गुड है या ये तो बंदे कपड़े ही नहीं ठीक पहनते तो इनसे काम नहीं करते? Yeah, Ashwin, as long as the company is making business, as long as the company has good standing in the industry, I think वो क्या पहन रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, किस टाइम खा रहे हैं, is none of my concern. For example, if I think of my own company and I'm running it and I have a whole load of people under me working, तो मेरी जो attention होगी वो उनके काम पे होगी. But if I मतलब if I see somebody who is solely focused on how they dress up, मतलब उन्होंने किस तरह कपड़े पहन के आना है, ऑफिस में बड़ा बैठना है, आई डोंट माइंड दैट अंटिल वो चीज उनके काम को इफेक्ट नहीं कर रही है. लेकिन व्हेन आई सी कि उनका काम मुझे उस तरह से नहीं मिल रहा, देन आई थिंक दैट्स द पॉइंट कि जहाँ पे मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी. एंड एज एनीबडी हु इज माय इवन बॉस, और अगर वो देख रहे हैं कि मेरी अटेंशन स्पैन जो है वो मेरे अपने सेल्फ एब्जॉर्ब सा हुआ है, एंड आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट हाउ आई ड्रेस अप एंड ऑल, तो देन आई थिंक दैट्स द पॉइंट कि जब डिस्कशन होनी चाहिए. बट आपने कैसे कपड़े पहने हैं या आपने मतलब मैंने अपने बॉस के माइंडसेट के कपड़े नहीं पहने, इज नॉट इम्पोर्टेंट. And I think this should change with the companies. Now, coming to the most critical question, and then we start going to the further points of social interaction. अच्छा, अब पाकिस्तान में एक जो बिलीफ है, ये आफ्टर पीपल कम अप एंड दे से कि टू बी एन एंटरप्रेन्योर एंड टू स्टार्ट योर बिजनेस यू डोंट नीड फाइनेंसेस, व्हिच आई टोटली डिसएग्री इन आवर इकोनॉमी. यस, अ पर्सन माइट हैव एक्सीलेंट आइडिया और उसका आइडिया बहुत फिजिबल भी होगा, लेकिन इस टाइम पे पाकिस्तान में फिजिबिलिटी रिपोर्ट सिर्फ तब अच्छी समझी जाती है जब उसमें प्रॉफिट शो हो रहा हो टैक्स वगैरह देने के बाद. सो आई डोंट एग्री. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस नोशन दैट बिजनेस जो है पैसे के बगैर शुरू हो सकता है? I'll not agree to this either. I think कि वो पैसा कितना होना चाहिए ये तो फ्लक्चुएट कर सकता है, बट यू नीड टू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश. मतलब जरूरी नहीं है आपके पास 10-15 लाख हो तो आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं.
आप छोटा स्टार्ट ले सकते हैं, बट यू कैन नॉट जस्ट से कि मेरे पास पैसे नहीं है बट आई एम गोइंग टू गो फॉर एंड स्टार्ट अप अ फर्म, दैट कैन नॉट हैपन. हाँ, बट देन अगेन अशर, आई हैव सीन पीपल जो कि डिजिटलाइजेशन के दौर की वजह से दे हैव हैड देयर स्टोरीज कि कैसे पैसे ना होने के बावजूद दे हैव the ability to earn and start up their own business. I think उसके लिए जो चीज मैं उनमें देख रही होती हूँ वो ये होता है कि you need to have a specific talent then. फिर आप ऐसे you cannot just like घूम नहीं सकते हो इर्द गिर्द कि यार मैं entrepreneur हूँ, मुझे कस्टमर डीलिंग आती है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है. You need to have a specific technical talent जिसके थ्रू तुम वो बिजनेस शुरू कर सको. So if you don't have that and you're trying to enter the market, you need to have certain cash. थोड़े बहुत पैसों के बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. सारा कुछ भी कर लो, बिजनेस भी चला लो, जो मर्जी कर लो, लेकिन शादी तो तभी होगी जब गोल रोटी बनानी आएगी. तो कितनी गोल रोटियां बनाई हैं आप तक? मुझे रोटी नहीं बनानी आती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई तो बट आई एम डूइंग गुड इन माय लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह. ऐसा कोई मसला हुआ नहीं अब तक मुझे. You are very fortunate enough, because other than that we see very stories. अच्छा, coming to हाँ. this social interaction. अब एक जो लड़की है, I don't mind whatever she does, but लेकिन जो सोसाइटी में हमारी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लड़ाई है, वो एक जो हमारा कल्चर चल पड़ा है, या आप टिकटॉक पे या उसके ऊपर करते हैं, आई डोंट फील इट्स रियलिटी. वो 1-2% लोगों ने अटेंशन कैच करने के लिए वो चला दिया, लव कोर्स एंड सैडनेस और ब्रेकअप. मुझे अपना यूनिवर्सिटी का टाइम याद आता है ना, आई फील लाइक कि यार हम तो पता नहीं किस फिर आयरन एज में या स्टोन एज में रह रहे थे कि हाँ. हमें पता ही नहीं था इन चीज़ों का. हम जाते थे, अच्छे हंसी दोस्त थे, ये सारा कुछ था, लेकिन ये दिल टूटने वाला. तो हाउ मेनी टाइम्स यू हैव फेल्स दैट, और क्या चल रहा है आजकल जिंदगी में इसमें? I think I had a similar life like you, कि focused on the studies and then on the society and then on growth. But अभी मैं अपने जब छोटे cousins या teenagers को देखती हूँ, they're always talking about sad songs. और खासतौर पे I'll quote a movie here, and if this is not appropriate, you may just get that out. There was this movie, Indian movie एक आई थी कबीर सिंह के नाम से. And I think it had a very strong impact on all the teenagers. I have seen people telling me कि relationship होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए. And trust me, this on Ashir कि मैं उसको सुन रही होती ना, I'm like, dude, this is extremely toxic. और ये क्यों प्रमोट हो रहा है? But then again, आपकी सोसाइटी में आप देखें, इससे ये काइंड ऑफ मेरी एक रिसर्च थी उस मूवी के बाद कि मैंने टीनेजर्स को बिठाया एंड आई आस्क्ड देम कि व्हाट वाज योर टेक ऑन द फिल्म. एंड मोस्ट ऑफ देम, एंड the irony was कि most of the girls even told me कि नहीं, the movie was great because somebody taking care of you at that level is something you don't get all the time. So I think basic trainings की again जरूरत है कि बचपन से वो बताया जाए कि हर इंडिविजुअल की इम्पोर्टेंस क्या है, ताकि ये इस तरह की मूवीज से या इस तरह की जो फजूल बातें हैं उनमें हम ना पड़े, एंड वी स्टे फोकस्ड ऑन आवर गोल्स. बेसिकली आई एग्री टू दिस कि वी हैव स्टॉप पीपल. जो ये यूथ है, हमने उनको बहुत चीज़ों से रोका है. तो यूथ में एक सबसे जो क्वालिटी होती है हर यूथ में, वो ये है, हर यंगस्टर जो करना चाहता है वो होता है रेबल. रिबेलियन जो है आपकी बेस्ट क्वालिटी होती है. मतलब जो घर वाले कहेंगे या दोस्त कहेंगे वो नहीं करना, ठीक है, जिसे मना करेंगे वो जरूर करना. तो हम लोगों ने मना बहुत कर दिया, इससे बात नहीं करो, ऐसे नहीं करो. तो वेन एवर दैट कम्स आउट जो उसके अगेंस्ट जाएगी, तो दैट मेक्स अस मोर कंफर्टेबल, और हाँ ये हीरो है, इसने ऐसे किया. सो आई थिंक दैट टोटली इज अ एग्री विद यू. सोशल दैट इज अ सोशल प्रॉब्लम, जो उसको हम आगे जाके हाँ. जॉब में भी कंसिडर कर रहे हैं. और हमें पता है कि भाई अगर किसी गर्ल की प्रमोशन हो जाए, वुमेन की, तो ये कहा जाता है कि भाई बॉस का दिल आ गया होगा, या बॉस तो हाँ. हमारा हेटर की, तो उसने कर दिया. तो दैट इज द नोशन जो वो चलता आ रहा है, जो हमने बड़े सारे प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया या इधर उधर भी. सो दैट इज द थिंग. Now, my last question for you, that as you are an entrepreneur, you've been in this field, the girls out there who are starting their life, who wants to become something, tell them what pressure you had and how you dealt them. अच्छा, I would again say कि alhamdulillah I have been extremely privileged with my family and all the surroundings क्योंकि people have been very supportive throughout. लेकिन then again as a woman कई सारी चीजें to all those women out there हो रही होती हैं जो कि शायद दूसरे को नजर भी नहीं आ रही थी, but you are actually feeling them and you are going through them. तो उसको डील करने का I would say आशीष, जैसे मैं शुरू में आपसे बात करी थी
कि एक ही तरीका है कि थिंक लेस एक्ट मोर, तो अपने एक्शंस जो है ना वो करते जाएं, बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन नॉट जस्ट चेंज ऐसे एक रात में, कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर एक बंदी को लगता है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि मैंने ये काम करना है और मैं ये करूंगी डिस्पाइट द प्रेशर्स दैट आई गो थ्रू, फैमिली प्रेशर्स, शादी के प्रेशर्स, जस्ट सम प्रेशर्स अटैच टू माय जेंडर, वो सब चीजों को दिमाग में रखते हुए मैं ये सोचूं कि जो मेरी नेक्स्ट जनरेशन आती है, जो मुझसे छोटे बच्चे हैं, उनको मैं इससे नहीं गुजरने दूंगी। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड। तो ऑल द women out there, they need to just do their thing जो उनके दिमाग में आ रहा है, and focus less on what others are saying because they're not going to stop, वो बोलते रहेंगे, and just let them speak। और जब आप किसी मकाम पर होगे, I think everything is going to shut down, एक अच्छा सा pause आएगा and people are going to appreciate them। तो I think ये जरूरी है Yes, कि keep exactly. going। What you said, yes, what you said, that is the main source that we are making this video to out there, the youth that is coming up. We have been privileged enough, or what we face, we don't want them to face it because depression is the major disease. Pakistan mein depression is rising day by day, and we don't think it as an illness or as something. We take it as an excuse. कि भाई depression तो एक excuse है. So our motive is that yes, depression are real, struggles are real, but we all have done it. You can do it. And that Exactly। 4 years of your life, they are the most important. People will say, ridicule you, people will say thousand bad things, but if your fire is alive in you, you can do it. So, as you said, you need to go forward and everything will come to a path. So, Zara, Exactly। thank you for your time. Okay, I hope you find your dreams and you become a very successful entrepreneur and you are already on the path of becoming one. So, we would like to share your LinkedIn ID and people would contact you and ask you if they need to help. Thank you again for your time and take Thank you care. Allah Ashir, Hafiz. you too, take care, thank you so much। जी, तो जैसे इंटरव्यू से आपने सुना, so at the end I would just like to say one line or one quote of Winston Churchill. Winston Churchill said that if you stop and throw stones at every barking dog, you will never reach your destination. So focus on your destination, not on barking dogs. People will say whatever they want to. You don't have to listen to it. You need to focus on your destination. Once you are at your destination, everyone will be quiet and they would be the one who would be praising you. That they knew that you would be there and you would be successful. Thank you so much and please like and subscribe our channel. Take care, ji. Allah Hafiz.